میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چورنی کہیں کی۔ تیز برستی بارش میں اس کی تیز آواز دب کر رہ گئی تھی۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں اسے۔ یارک نے ان دونوں کے درمیان مداخلت کی۔ یارک تم خاموش رہو، تم جانتے نہیں اسے، میں نے اسے خود چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، بہت شاطر ہے یہ، تم نہیں جہاں سمجھو گے۔ فرزام یارک کو سمجھانے کے انداز میں بولا، بھائی ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دل برا جو فرامس کو فرزام کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ چوری کرنے والی بات سن کر اسے وہی موالی یاد آیا۔ اوہ تو یہ پولیس والا تھا کیا؟ دل تجھے بھی ان بدماشوں سے چھپنے کے لیے اسی 2 نمبر ٹھرکی پولیس والے کا گھر ہی ملا تھا؟ وہ افسوس زدہ چہرہ لیے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اتنی آہستگی سے بولی کہ اسے بمشکل ہی اپنی آواز خود کو سنائی دی۔ ابھی کہ ابھی نکلو گھر سے باہر، ورنہ پولیس والے گھر چوری کرنے کے الزام میں ایسے ایسے کیس ٹھوکوں گا تاعمر سلاخوں سے باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے یارک کی طرف دیکھا۔ بھائی اس موسم میں یہ کہاں جائے گی؟ پلیز بھائی، وہ منت بھرے انداز میں بولا۔ ایسے موسم کا فائدہ اٹھا کر ہی تو ایسے لوگ گھروں میں وارداتیں کرتے ہیں، مگر تم نے سمجھو گے بھائی، اب اتنا بچہ بھی نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں۔ فرزام نے یارک کے نیلے ہونٹوں اور سفید چہرے کو دیکھا جو شاید اس ٹھنڈر دینے والی بارش میں جانے کب سے بھیگ رہا تھا۔ یارک اندر جاؤ اور جا کر چینج کرو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ مگر بھائی، اس نے دل کے حق نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ فرزام نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ دل جو خاموش تماشائی بنی ان دونوں کی باتوں کو سننے پر اکتفاف کر رہی تھی، وقت گزار رہی تھی کہ باہر سے فیروز بھائی کے غنڈے اسے ڈھونڈتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ فرزام نے دل کی کلائی کو اپنے مردانہ ہاتھ کی مضبوط ترین گرفت میں جکڑا، پھر گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دل نے مڑ کر یارک کی طرف دیکھا۔ یارک نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی۔ گیٹ سے باہر جھٹکا دے کر چھوڑتے ہوئے، آئندہ پولیس والے کے گھر چوری کرنے کے لیے پہلے سے سوچ لینا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ کڑی تیوریوں سے اسے وارن کرتا ہوا بولا، کم دھاڑا زیادہ، اور اس کے منہ پر گیٹ بند کرتا ہوا اندر آیا جہاں یارک ابھی بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ وہ مزید دل کی طرف دھاری کر کے اپنے بھائی کی نظروں میں اپنے کریکٹر کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار کیا ہو گیا یار، تم بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو، بھلا کیا تک بنتی ہے ایسے ٹھنڈے موسم میں بھیگنے کی؟ چلو اندر جا کر فوراً سے چینج کرو۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جی بھائی۔ وہ دھیمے سے بولا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنے روم میں جاتے دیکھ فرزام کو تسلی ہوئی تو وہ بھی جو بھیگ چکا تھا یونیفارم چینج کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یارک نے 5 منٹ بعد دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ میدان صاف تھا، کسی کو بھی باہر موجود نہ پا کر وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مین گیٹ کو کھولنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ فرزام کے کمرے کی کھڑکی سے بیرونی مین گیٹ کا مناظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ کچن سے ہوتا ہوا گھر کے بیک سائڈ کی دیوار سے باہر نکلا، ادھر ادھر اس کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ وہ سامنے گھر کی شیڈ کے نیچے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گٹھڑی بنی بیٹھی ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ دل میرے ساتھ اندر چلو، وہ اس کے پاس پہنچ کر بولا۔ مگر وہ تمہارا ٹھرکی، میرا مطلب ہے وہ پولیسیا بھائی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، بھائی روم میں چلے گئے ہیں، تم ان کی فکر مت کرو، ابھی چلو یہاں سے۔ اس خراب موسم میں یارک کی مدد لینے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ روڈ بھی بارش کی ٹھنڈے پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ اٹھی تو یارک نے گھر کی طرف قدم لیے، وہ بھی اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ بالآخر یارک اسے اپنے روم میں لانے میں کامیاب ہوا۔ یہ لو ٹاول ڈرائی کر لو۔ یارک نے دور کھڑے ہی اس کی طرف ٹاول پھینکا، پھر کبرڈ سے اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے ہی ہیٹر آن کرنا نہ بھولا۔ کچھ دیر بعد گرم پانی سے شاور لیے چینج کر کے باہر آیا تو خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظر دل پر پڑی جو نیچے قالین پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی، صوفے کی ٹیکس لیے شاید تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی ہلکی پھلکی گرمائش سے شاید سکون ملتا ہی وہ اتنی جلدی سو گئی تھی۔ یارک نے کمفرٹ اٹھا کر اس پر ڈالا اور پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ چہرہ دل کی طرف کیے ہوئے تھا۔ آج اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جیسے کب سے چاہا آج وہ اس کے سامنے تھی، اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا، مگر کسی بھی مضبوط رشتے کے بغیر نہیں۔ میں صبح ہی دادا جان سے ہمارے بارے میں بات کروں گا، وہ دل میں عہد کیے اس کے دلکش نقوش کو نظروں میں قید کیے جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔
फजर की अजान ने उसके कानों में रस घोला तो वो नींद से बेदार हुआ। नजर सामने पड़ी जहां वो अभी तक उसी हालत में सोई हुई थी, बिना कंफर्ट के साथ। सर्दी महसूस होने पर और अजान की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली। वो बिस्तर से पाँव नीचे रखे हुए उठा और उसके करीब आया। दिल उठो। वो उसे और थोड़ा दूर खड़े हुए आवाज़ देकर उठाने लगा। दिल उठो। फिर से कोशिश की। वो दूसरी आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपनी चादर सर पर ठीक करती हुई खड़ी हुई और खुद पर लिया हुआ कंफर्ट एक तरफ रखा। सॉरी, तुम्हारी नींद खराब की, वो माजरत खा अंदाज में बोला। दरअसल अब फजर की नमाज अदा करने के लिए उठने वाले हैं। चची रोज सबको इस वक्त जगाने आती हैं। उन्होंने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या करूं, वो सोचने के अंदाज में बोला। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अब मजीद कुछ भी करने की। तुमने मेरी आगे ही इतनी मदद की है, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, वो मुनमियत लहजे में बोली। वैसे एक बात करूं, तुमने ये अजीब व गरीब किस्म की लैंग्वेज कहाँ से सीखी? वो मुस्कुराकर उसकी रात वाली बात फरजाम के बारे में लफ्ज़ पुलसिया और ठरकी याद करके पूछने लगा। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। एक अकेली औरत का इस जालिम माशरे में सरवाइव करना तुम क्या जानो। लहजे में सर्दपन और आवाज़ में चुभन थी। दिल मैंने बहुत सोचा, बस आज ही दादा जान से बात करूंगा हमारी शादी की। फरजाम जो यार की रात वाली हरकत को लेकर फिक्रमंद था कि कहीं उसे खुदा न खास्ता बुखार ना हो गया हो, वो एक लम्हे भी चैन से ना गुजार पाया। इसीलिए उसका हाल पूछने और नमाज के लिए उठने की वजह से उसकी कमरे की तरफ आ रहा था। यार के कमरे में से आती बातों की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर रुका। क्यों, क्या हुआ? एक तो आज़ादी से शादी, इतना हौसला कहाँ से लाए? वो तंज़िया अंदाज में बोली, मगर यार की तरफ देखकर थोड़ा नरम हुई। वो ताक भरी निगाहों से उस पर जमाए हुए था। तुम कभी भी एक तोइफ से शादी करके खुश नहीं रहोगे, घर में भी जलील हो जाओगे और ज़माने में भी रुसवा। तोइफ कभी इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजारती। निगत बेगम जो यार्क को उठाने सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी, इनके कदमों की चाप सुनकर फरजाम पीछे हुआ और राहदारी के दूसरी तरफ छुप गया। देखो यार्क, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुमसे शादी नहीं। यार्क शायद दरवाजे को लॉक करना भूल चुका था। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, निगत बेगम दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुई और अंदर का मनाजर देखकर आंखों की पुतलियां वहीं साख्त हुई। उनकी निगाह यार्क को एक अजनबी लड़की के साथ देखकर फटी की फटी रह गई। यार्क दिल से बात करने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे उठाने का मकसद तो सिरे से भूल चुका था। वो दोनों भी निगत बेगम को सामने देखकर शॉक्ड हुए। अब घर में जो तूफान बर्पा होने वाला था, उसका अंजाम क्या होने वाला है, इससे हर कोई बेखबर था। वो बिना कुछ बोले जिस तेजी से रूम में आई थी, इसी तेजी से कमरे से बाहर निकली। निगल बेगम सबसे पहले जमात और फिर शहबाज तगलत को उठा चुकी थी कि वुजू किए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने के लिए कमरों से बाहर निकले। अब्बा जान, वो लड़की, वो फूली हुई सांसों से बोली। कौन लड़की? शहबाज तगलत ने चुपचे से उसे पूछा। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। यार दिल के साथ कमरे से बाहर लॉन्ज में आया। फरजाम भी तकरीबन इनके साथ ही वहां पहुंचा। शहबाज तगलत की जब वो वाकई नजर अनजान लड़की पर पड़ी तो भौंच चला रह गया। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और आलम तैश में आकर बोले, मैं बस जा ही रही थी। वो इनकी बुलंद आवाज़ और जलाल से खाइफ धीमी आवाज़ में बोली। ये लड़की यार के कमरे में थी। निगत बेगम ने उसका बेच चौराहे में भांडा फोड़ा। यार शहबाज की जानदार किस्म की आवाज़ से दरो दीवार भी कांप उठे। हमेशा की बोल्ड दिलबरा भी इनकी आवाज़ से सहम कर रह गई। यार जो अपने और दिल के बारे में इनसे बात करना चाहता था, इस किस्म की एसोसिएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। कैसे सफाई दे और क्या बताए वो दिल के बारे में? अभी वो किसी कश्मकश में था। फरजाम की नज़र अपनी जान से प्यारे भाई पर थी। उसके चेहरे के उलझे हुए जाविये देखकर उसने सारी गलती का इल्ज़ाम अपने सर लेना चाहा। आखिर को कैसे यहाँ मौजूद होते हुए भी अपनी आंखों के सामने अपने भाई की दुर्गत बनते हुए देख लेता। दादा जान, ये लड़की यार की नहीं, मेरे कमरे में थी। यार्क और दिल दोनों ने बेवक्त नज़र उठाकर फरजाम की तरफ देखा। ये झूठ बोल रहा है। निगत बेगम ने शहबाज तगलत से कहा, तुम खामोश रहो। जमात तगलत ने अपनी नफ्स बेहतर को घुरका। ए लड़की, सच सच बताओ, तुम किसके साथ थी? शहबाज तगलत ने सख्त आवाज़ में पूछा। वो तो बुरी तरह फंसी। पहले यार्क की तरफ देखा जिसके चेहरे के रंग फीके पड़ चुके थे। नहीं, मैं सच नहीं बताऊंगी। यार्क ने मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया, मैं इसकी निक्की का सिला उसे बेइज्जत करवा कर नहीं दूंगी। फिर उसने फरजाम की तरफ देखा जो स्पार्ट अंदाज में उसे देख रहा था।
उस दिन का भी और आज बाहर निकालने का बदला लेने का ये अच्छा मौका था। अच्छा है ना इस खड़ू ठरकी पुल से पुलिस वाले की भी दुर्गत बने। उसकी सी आंखों में ये सोचते हुए चमक उभरी, वो दादा जान इस ठरकी, मेरा मतलब ये पुलिस वाला मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया था और मेरे साथ। फरजाम ने दांत पीस कर जख्मी निगाहों से इसकी मकारी को देखा। वो उसे बेइज्जत करवाने के लिए लहजे में मासूमियत लिए रोने के अंदाज में सर झुकाए चल हुए बोली। शहबाज चलकर उसके पास आया और उसके सर पर हाथ रखे। रो मत बच्ची, तुम किसी के साथ भी जबरदस्ती होता नहीं देख सकते, तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा और तुम्हारी साथ जबरदस्ती करने वाले को इसकी सजा। वो अटल लहजे में बोले। सब धड़कते हुए दिल और बेयकीनी से शहबाज के अगले मल पर नजर जमाए हुए थे। माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया। जाओ जमात साथ वाले मौलाना अकबर इकबाल साहब को बुला कर लाओ, अभी के अभी इस बच्ची का निकाह होगा। वो भी हुई आवाज में धाड़े। फरजाम ने कहर बरसाती नजरों से उसे देखा। यार का दिल डूब कर उभरा कि आखिर दादा जान क्या फैसला करने वाले हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। वो शहबाज तगल्लस कि इस फैसले पर हरासा हुई तो उसके फैसले की नफी करने लगी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। वो चिल्लाई। खामोश लड़की, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं जो तुम्हें रास नहीं आ रही। तगल्लस खानदान की बहू बनोगी और क्या चाहिए। और तुम, हमें तुमसे इस सब की कतई उम्मीद नहीं थी। वो फरजाम की तरफ शिकवा निगाह किनार निगाहों से देखकर बोले। घर में तुम्हारी एक बहन भी है, अगर इसके साथ खुदा नखास्ता कोई इस तरह करता तो। वो सीढ़ियों से उतरती हुई नूरुल्लाह की तरफ देखकर बोले, जो शायद मुफज्जर की नमाज अदा करने के बाद नीचे उतर रही थी। दिल को यूं सबके बीचों बीच खड़े सबकी मुस्कर निगाह बने देख तो अपने सहमे हुए दिल पर हाथ रखा। या अल्लाह मेरे साथ कुछ बुरा मत करना वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती हुई उतर रही थी। दादा जान मुझे आपसे कुछ कहना है, यार्क ने बलाखिर हिम्मत किए हुए कहा। दरवाजे से जमात तगलत साथ वाले मौलाना इकबाल साहब को अपने साथ लिए अंदर आए थे। इन्हें हाथ में रजिस्टर पकड़े अंदर आते देख तो सबके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। रोज की तरह आज भी सूरज अपने वक्त पर तुलू हो गए अपनी रोशनी बिखेर चुका था घर, मगर इस घर में रहने वाले मकीनों का तो जैसे रोशनियों से कोई वास्ता ही नहीं था। गमों में डूबा हुआ घर आज भी बंजर और वीरान दिखाई देता। बस कभी हनान की किलकारियां या मीठी मीठी बातें उस वीरान घर में जान डाल देती। और और जब वो सोता तो यूं लगता कि ये घर नहीं खंडर है जहाँ किसी जी रूह के निशान भी नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि गमों के बादल हमेशा ही हमारी ज़िंदगी पे कायम रहें। ये गम के बादल कब छटेंगे इस खंडर नुमा घर से, ये कौन जानता था। गमों के बादल इन खुशियों पे हावी नहीं हो पाते और वो हमारी ज़िंदगी से कहीं गायब हो जाते हैं। अगर हम खुदा पे यकीन रखें और सब्र से काम लें तो शायद हमारी ज़िंदगी भी सहल हो जाए। वो कमरे के मलहका टेरेस में खड़े बाहर रोड पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। शहर की सड़क रवां थी पर सोच निगाहें इसी मनाज़र पर जमी थी। मामा मामा, बेड पर बैठा हनान अपने आगे रखे हुए ब्लॉक से कुछ बनाने में माहिर था। अपनी माँ को ना पाकर ज़ारों के तार रोने लगा था। मामा की जान, मामा के प्यारे बेटे को क्या हुआ। मामा इधर ही थी। वो भाग कर अंदर आई और उसके पास बेड पर बैठते हुए उसे अपनी गोद में लिए थपकाने लगी तो उसके रोने में कमी आई। मामा पास आना। वो अब उसकी गर्दन में मुंह देते लाड से बोला, हनी मेरी जान, मामा आपके पास है, आपको छोड़कर जा सकती है क्या। वो उसका चेहरा अपने हाथ से प्यार से छू कर पूछ रही थी। हनान ने नफी में सर हिलाया। हनान ने उसे खुद में भेज लिया। मम्मा पार्क। उसने अपनी माँ को प्यार लुटाते देख फरमाइश कर दी। मेरे प्रिंस को पार्क जाना है। वो उसकी थोड़ी को छू कर पूछ रही थी। हनान ने अपने मोतियों जैसे दूध के दांतों की नुमाइश करते हुए साबत में सर हिलाया। हनी मामा पास आना है। हनी मामा से प्यार प्यार इतना ज्यादा। वो अपनी तोतली जबान में दोनों छोटी छोटी सी बाहें फैलाए बोला, मम्मा भी अपनी हनी से सबसे ज्यादा प्यार। वो उसका गाल चूमकर उसे उठाते हुए बोली, ये क्या बनाया मेरी हनी ने। वो ब्लॉक्स का कुछ अजीबो गरीब सा नक्शा बना देख पूछ रही थी। हनी मामा बाबा घर। वो उसे समझाने लगा। मामा बाबा। वो उससे जदियान के बारे में पूछ रहा था। आज आप लेट उठे थे ना, आपके बाबा ऑफिस चले गए। अच्छा चलो जल्दी शूज़ पहनो, पार्क चलें। वो उसे शूज़ पहनाते हुए बाहर निकली। नसीम बाजी, हम करीबी सोसाइटी के पार्क में जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ चलें। वो हन्नी का हाथ पकड़कर सर पर दुपट्टा ओढ़े बाहर निकल गई। नसीम भी इनके साथ साथ थी। जदियान तो अगलत में सुबह का निकला, रात गए घर आता है। इस अरसे में वो सियासत में पूरी तरह कदम जमा चुका था। हुकूमत से अपने इलाके के लिए फंड्स
پرول کروا کر کافی تعمیراتی کام کروائے تھے۔ سارا دن غریب عوام کی خدمت میں سرگرم عمل رہتا۔ اس نے اپنے بابا کے حصے میں ملی رقم سے لیڈر انڈسٹری خرید لی تھی جہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا۔ باقی کا وقت وہ وہاں کا کام دیکھنے میں گزارتا۔ صبح سنڈے کو ہی کچھ وقت حنان کے ساتھ گزار پاتا۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح مصروف کر چکا تھا۔ دادا جان لیکن میری بات تو سنیں، یارک نے آگے بڑھ کر کہا۔ مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ میرے پوتے ہوئے ایک بے بس لڑکی کے ساتھ جاتی کیا منہ دکھاؤں گا میں سوسائٹی میں؟ تم چاہتے ہو کہ باہر ساری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولے۔ لیکن میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں گھرایا اور پاس رکھے ہوئے میز پر سے شیشے کی واز کو ہاتھ مار کر نیچے پھینک دیا، جو چھنک کی آواز سے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ لمحے لمحے ڈاک بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دادا جان یا اس کا بھائی دونوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی منانے آئے گا۔ یا رکو یارک، فرزام نے اسے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ تن فن کرتا ہوا نکل گیا۔ نور اسے غصے میں دیکھ اس کے پیچھے باہر نکلی۔ یارک میری بات سنو پلیز، وہ اونچی آواز میں کہتے ہوئے اس سے جانے سے روکنے کے لیے بولی۔ وہ راہداری عبور کر چکا تھا، بنا مڑے وہیں رکا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ یارک میں جانتی ہوں تم دل کو پسند کرتے ہو، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یارک کو باہر نکلتے دیکھ شہباز کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اپنی داہنی بازو کو بائیں ہاتھ سے زور سے جگڑتے ہوئے نزدیکی صف پر ڈھک گئے۔ فرزام جو یارک کے پیچھے جانے والا تھا، شہباز تغلق کی حالت دیکھ تیزی سے ان کے پاس آیا۔ میں ٹھیک ہوں اقبال، تم نکاح پڑھواؤ۔ وہ پاس کھڑے ہوئے مولانا اقبال صاحب کو دیکھ کر بولے، مگر دادا جان میں یہ نکاح نہیں۔ فرزام عجیب کشمکش میں متبع تھا، کیسے میں ایک طائف سے جو ایک رات میرے بھائی کے کمرے میں گزار چکی ہے، کسی صورت نہیں۔ وہ دل میں مسمع ارادہ کیے ہوئے انکار کرنے لگا، مگر شہباز کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر دل پر پتھر رکھ کے وہ اپنے دماغ میں اٹھتے سوالوں کو نظر انداز کرتے دل کی سنتے ہوئے، جو اپنے دادا جان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کے مانتے ہوئے لمحوں میں خود کے کیے گئے فیصلوں سے منحرف ہوا۔ شہباز تغلق جیسے سانسیں روکے بیٹھے اپنے اندر اٹھتے ہوئے درد سے خاموشی سے نبرد آزما ہو رہے تھے۔ آپ کے والد کا نام؟ وہ دلبرا کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھے تھے۔ کوئی نام نہیں میرے باپ کا۔ وہ زہریلی ناگن کی طرح پھنکاری۔ اقبال صاحب نے شہباز تغلق کی طرف دیکھا، شاید غصے کی وجہ سے نہیں بتا رہی۔ شہباز نے کہا، بتاؤ بیٹا، نکاح نامے پر لکھنا ہے۔ کہا نا مجھے میرے باپ کا نام کا نہیں پتا۔ میں چھوٹی تھی تب ماں مر گئی۔ اب کیا مری ہوئی ماں کو قبر سے نکال کر پوچھ کے آؤں باپ کا نام؟ وہ حد درجہ بیزاری سے بولی۔ شہباز تغلق نے آنکھیں زور سے میچ کر صوفی کے پشت سے سر ڈگایا۔ اقبال جلدی نکاح پڑھواؤ، میں جانے سے پہلے فرض سے ثبوتوش ہونا چاہتا ہوں۔ دلبرا بیٹا، کیا آپ کو فرزم بن فرات تغلق بازود حق مہر سکہ 5 لاکھ روپے راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جماد اور نگہت بیگم خاموشی سے کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی شہباز کے فیصلے پر انگلی اٹھانے کی۔ مولانا صاحب نے 3 بار اپنے لفظ دہرائے، مگر وہ خاموش رہی۔ فرزام جو دور کھڑا تھا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ چپ چاپ سائن کرو اس پر۔ وہ اس کی ڈھٹائی پر دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے گھرایا، نہیں کروں گی، جاؤ جو کھاڑنا ہے کھاڑ لو، چپ چاپ سائن کرو، ورنہ اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں، مجھے مجبور مت کرو وہ حربہ آزمانے پر جو تمہیں ناگوار گزرے۔ وہ اپنی بیئرڈ کو انگلی سے سہلاتا ہوا اسے مخمصے میں ڈال گیا۔ یہ دلوں کے معاملے ہیں، مگر تم کیا سمجھو گے کہ کسی کو زبردستی خود تک محدود کر دینا مقابلے کے لیے کتنی دردناک اذیت ہے؟ تم مجھ پر اپنا آپ تھوپ کر گھٹ گھٹ کر مرو گے۔ فرزام تغلق وہ ایک ایک لفظ کرب زد لہجے میں چبا چبا کر بولی۔ کان جیسی آنکھوں میں لپکتے شعلے سامنے کھڑے وجود کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھے۔ تمہیں تو میرے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے دلبرا، جو تم جیسی طائف زادی کو اپنا نام دینے چلا ہوں، جس کا بھگوڑا باپ اس کی ماں کو بن بہائے تم جیسی نشانی دے کر چلا گیا۔ اس کی باتیں تھیں یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں نہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس کا سارا وجود جھنجھوڑ اٹھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے، تو گویا اس تک بھی اس کی سچائی پہنچ چکی تھی۔ تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والے شخص کا منہ توڑنا دلبرا بخوبی جانتی ہے۔
مگر کیا ہے، پہلی بار کسی نے میری طرفداری میں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مجھے ترس آ گیا تمہارے بوڑھے دادا پر، تو جو احسان کیا میں نے تم پر۔ وہ نکاح نامہ اقبال صاحب کے ہاتھ سے کھینچ کر اس پر سائن کرتے ہوئے دوبارہ سے میز پر پٹک کر اس کے پاس آئی۔ بہت شکریہ تمہارا ایک طائف سے نکاح رچانے کا، بہت جلد اس کا انجام بھگتو گے۔ جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں تو فخر سے بتانا انہیں۔ فرزم کے سائن کرتے ہی شہباز تغلس کی آنکھیں پوری طرح بند ہوئیں۔ دادا جان، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ زماد تغلس بھی اپنے باپ کی حالت پر بھونچا رہ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے اندر ہمت متمجک کرنے کے لیے یار میں دادا جان سے بات کروں گی کہ دل کا نکاح تم سے کر دیں۔ ہوں، تمہاری کون سنتا ہے، بڑی آئی میری خیر خواہ، اپنا ڈرامہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اندر سے آتی فرزام کی بلند آواز پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بھاگے۔ شہباز تغلس ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ فرزام اور یار دونوں نے مل کر شہباز تغلق کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ زماد تغلق نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چند منٹوں کا سفر طے کیے وہ شہر کے اچھے ہاسپٹل میں تھے۔ آپریشن تھیٹر میں شہباز کو لے کر گئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ تینوں جلے پیر کی بلی کی ماند وہیں آپریشن تھیٹر کے ارد گرد ہی چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ تینوں لمحہ ضائع کیے بنا ان کی طرف آئے، لپکے۔ ڈاکٹر، دادا جان ٹھیک تو ہیں؟ یارک نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے دل میں تب سے یہ گلٹ چل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں دادا جان کی اس حالت کا ذمہ دار وہ ہے۔ اگر آج انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ بجھے دل سے تب کا اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیشنٹ کو سوائر ہارٹ اٹیک آیا ہے، پہلے بھی انہیں ایک بار مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ آپ کو بتایا بھی تھا کہ انہیں پریشانیوں سے دور رکھیں۔ وہ اپنے ماہر پیشوانہ انداز میں اسٹیتھوسکوپ کو گلے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولے، تو ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ فرزام نے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ فرزام شیشے کے پاس جا کر باہر سے انہیں دیکھنے لگا۔ نکاح تو نہیں ہوا نا؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پاس کھڑے ہوئے اپنے چچا زماد سے پوچھا۔ فرزام کا اس لڑکی سے نکاح کروا دیا بابا نے۔ کوئی جواب تھا یا کوئی بم تھا جو اس پر گرا اور اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کیے مسمار کرتا چلا گیا؟ وہ الٹے قدم لیتا ڈھیلے وجود سے پیچھے دیوار سے جا لگا اور آنکھیں بند کیے شخصا جسم اور چٹکتے ہوئے اعصاب سے جھونجنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت دھاڑے مار مار کر روئے، اپنے اندر کا سارا غبار نکال لے۔ اندر کی گھٹن ناقابل برداشت لگی۔ دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے، تہس نہس کر دے۔ پھر ایک پل کو تو دل نے کہا یہاں سے کہیں دور چلا جائے، مگر دماغ نے کہا کیا تو اپنی پرورش کرنے والے کے احسانات بھول جائے گا؟ اپنے دکھ میں اس کا درد بھول جائے گا؟ انہیں تکلیف میں دیکھ کر بھی یہاں سے جانے کی ہمت ہے تجھ میں؟ کیا اتنا خود غرض ہے تو یار کہ اپنے غم کو خود پر حاوی کر کے اپنے پیار کرنے والوں سے غفلت برتے گا؟ ذہن میں امٹتے ان سارے سوالوں کا جواب پاتی وہ قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گیا اور شہباز کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شام تک شہباز تغلق کی حالت سنبھل چکی تھی۔ سب ان سے ملنے ان کے روم میں گئے۔ فرزام، مجھے زیدان سے ملنا ہے۔ آخر کار انہوں نے دل میں سر بھرتی ہوئی خواہش کو لفظوں کا جامہ پہنا ڈالا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آئے گا وہ امید بھری نظروں سے پوچھ رہے تھے۔ کیوں نہیں آئیں گے بھائی، انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے بلایا ہے تو ضرور آئیں گے۔ وہ ان کا جھریوں زرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تسلی آمیز آواز میں بولا، ویسے بھی بھائی اکیلے ہیں، 2.5 سال پہلے ان کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے آپ کو بتایا نہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سچ کہہ رہے ہو، ہمارے خاندان کا وارث آ چکا ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے ملنا ہے اس سے، جلدی بلاؤ اسے۔ کتنے سال بیت گئے، تغلط والا میں کلکاریاں گونجے ہوئے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ فسرتے جذبات سے لبریز لہجے میں بولے۔ زماد اور یارک دونوں ان کے پاس بیٹھے ان کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ فرزام باہر نکل کر زیدان کو کال ملانے لگا۔ تیسری بل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فرزام؟ دوسری طرف سے گمبھیر آواز میں پوچھا گیا۔
किया। मैं तो ठीक हूँ भाई, मगर दादा जान हॉस्पिटल में। इससे पहले कि फरजाम अपनी बात मुकम्मल कर पाता, दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। ज़ैदियान तखल्लुत, जो इस वक्त पार्टी के एक अहम मीटिंग में शिरकत था, एक्सक्यूज़ मी माजरत किए फ़ौरन वहाँ से निकला। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का कहा। फरजाम ने उसे हॉस्पिटल का नाम सेंड किया तो उसने ड्राइवर को मखसूस हॉस्पिटल चलने की हिदायत दी। वो वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इतने सालों बाद आज वो फिर रूबरू थे। शहबाज तगल्लुक की प्यासी नजरें उसे सामने देख सरेआब हो रही थी। सफ़ेद खद्दड़ के सूट में मुबलिस ब्लैक बास्केट पहने, बालों को जेल से सेट किए, पुरवकार शख्सियत समेटे वो इन्हें देख अपनी नाराज़गी भुलाए इनकी तरफ बढ़ा। कैसे हैं? उसके लहजे में फिक्र की झलक वाज़े दिखाई दे रही थी और इनके गाल पर हाथ रखकर पूछने लगा। इतने बरसों बाद उसे महसूस करते हुए उनकी आंखों में से आंसू जारी हुए। ज़ैदियान ने अपने हाथ से इनके आंसू पूछे। मैं आ गया हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और आपने ये अपना क्या हाल बना रखा है? वो उनको पहले से ज़्यादा कमज़ोर जिसामत को देखकर बोला। शहबाज तगल्लुक ने अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत पोते को देखा, जिसके हर अंदाज में शान और तमकीनियत नुमायाँ थी, जो कभी जवानी में इनका खासा हुआ करती थी। वो नज़रें फेर गए, कहीं उसे इनकी नज़र ही न लग जाए। क्या हुआ दादा जान, अभी भी नाराज़ हैं? वो इनको रुख फेरते हुए देख परेशानी से पूछ रहा था। मेरी नाराज़गी तुम दूर कर सकते हो? वो उसकी तरफ देखकर बोले। वो कैसे? ज़ैदियान की भूरी आंखों में हैरानगी थी। अपने दादा की ख्वाहिश पूरी करोगे? आप हुक्म करें। वो मोहब्बत अंदाज में बोला। मेरी आज भी वही ख्वाहिश है जो कुछ बरस पहले थी, तुम्हारी और नूर की शादी। उनकी बात सुनने सुनने वो भूरी आंखें कुछ पल के लिए मूंद गया, को गहरा सांस अंदर खींचकर जैसे खुद को नॉर्मल किया। ये सिर्फ वही जानता था कि इन पलों में वो कैसे जिया है। शायद उनके हुक्म अदूली की वजह से उसे ये सज़ा मिली कि गानिया उससे दूर चली गई। ये सोचते हुए उसके मजबूत असाब भी झंझड़ा गए। दादा जान, पहले बात अलग थी, अब मेरा एक बेटा भी है। क्या नूरुलैन उसे संभाल पाएगी? क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी? वो धीमे लहजे में गोया हुआ शायद हकीकत से इन्हें आगाह करवाना चाहता था। क्यों नहीं संभालेगी? आखिर को इस खानदान का वारिस है वो। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। ठीक है दादा जान, मुझे आपका फैसला मंजूर है। वो दिल पर जबर रखते हुए बोला, मगर वो कुछ लम्हे ठहरा, फिर बोला, क्या हुआ दादा जान? दरअसल मुझ पर एक जिम्मेदारी है। गनिया वफात से पहले एक बच्ची को घर लाई थी, वो ही हनान की देखभाल कर रही है। मैं चाहता था कि उसके फर्ज से भी सदबदोश हो जाऊं। वो मुतफिक्र अंदाज में बोला, मैं जानता हूँ सब इस बारे में। इकबाल ने बताया था मुझे कि किसी तरह तुमने उस बच्ची की मदद की। सारा वाक़या मेरे इल्म में है। शहबाज तगल्लुक ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, अल्लाह ताला ने यतीम की कफालत करने का बहुत बड़ा अजर रखा है। उसे भी हम अपने घर की बहू बनाकर ये सवाब कमा लेंगे। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो हैरान की नज़रों से इन्हें देखते हुए बोला, जिस दिन तुम्हारा और नूर का निकाह होगा उसी दिन इस बच्ची के साथ हम यॉर्क का निकाह करवा देंगे। वो तो जैसे हथेली पर सरसों जमाए बैठे थे। दादा जान, हॉस्पिटल के बेड पर आपने सारी प्लानिंग कर लेनी है। आज इतने अरसे बाद उसके अनाबी लब होले से मुस्कुराए थे। उसे मुस्कुराते देख शहबाज की खुशी भी जिंदानी थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखना पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाऊंगा। आप एक बार याक से इसकी राय ज़रूर जानिएगा, उम्र भर की बात है। मैं नहीं चाहता कि इस पर यह फैसला ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाए। अगर उसे इस फैसले से एतराज़ हुआ तो कुछ और सोच लेंगे। ठीक है, वो मेरी डिस्चार्ज स्लिप बनवाने गया है, घर जाकर उससे तहम्मुल से बात करूंगा। ये फरजाम किधर है? ज़दियान ने नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए कहा, वो फार्मेसी से मेडिसिन लेने गया है, बस आता ही होगा। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। निगल बेगम तो अपने कमरे में नमाज अदा करने चली गई, जबकि दिल वहीं लॉन्ज में खामोशी से सोफे पर बैठ गई। नूर भी उसके सामने बैठी थी। एक वक्त था कि वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों के वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी गहरी खामोशी थी। खामोशी का कल्फ तब टूटा जब लैंडलाइन पर जमात तगल्लुत का फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम बाबा
दादा जान की तबीयत अब कैसी है? नूरुलैन ने छूते ही पूछा। यही बताने के लिए ही फ़ोन किया था, वो ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। ये खबर सुनकर उसके सांस में सांस आया। फ़ोन रखे वो वापस बैठी। कैसे हैं तुम्हारे दादा जान? दिल ने ही आखिर बात करने में पहल की। ठीक है, अब वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। दिल मैं जानती हूँ कि यार्क आपको पसंद करता है और तुम भी। ये खरफात किसने भरी तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिल में यार्क के लिए ना पहले कुछ था और ना अब है। नूर ने हैरानगी से देखा उसे, बल्कि तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है कि तुम यार्क के लिए क्या जज्बात रखती हो। दिल ने उसकी आंखों में देखकर बिना लगे लपटे कहा, वैसे भी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। मेरा निकाह जबरदस्ती तुम्हारे उस पुलिस वाले ठरकी बददिमाग भाई से हो चुका है। क्या आपका निकाह हो गया? वो हैरानगी से बोली। आपकी किस्मत बिल्कुल मेरी जैसी है हनान। मुझे भी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ और आपको भी, मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी मामा आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊं। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। वो हनान के मासूम गोल मटोल सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते हुए दिल में बोली, फिर झुककर उसकी छोटी नन्ही सी पेशानी को चूमा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। वो उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी के ख्वाब बुन रही थी, मगर कोई और उसके लिए कुछ और ही फैसला किए हुए था। वो हनान के नरम बालों में उंगलियां चलाने लगी। प्यार भरी नजरें अभी भी हनान के सोए हुए मासूम चेहरे पर अटकी थी। रात ढल गई और शबाब तगल्लुक हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके थे। सब लॉन्च में जमा थे। शबाब तगल्लुक के गिर्द डेरा जमाए हुए थे। फरजाम, जो आज की सिचुएशन की वजह से पुलिस स्टेशन नहीं गया जा पाया था, फोन करके अपने वहां ना आने की इतला कर चुका था। फरजाम, नूरुलैन तुम्हारी बीवी को मेरे कहने पर तुम्हारे कमरे में छोड़ आई है। जाओ तुम भी आराम करो, मुझे यार्क से कुछ अकेले में बात करनी है। उन्होंने साफ झंडी दिखाई कि सब यहाँ से जा सकते हैं। सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, सिवाय नूर के, जो दरवाजे की ओर में खड़ी थी। लॉन्च में यार्क और शबाब तगल्लुक के सिवा कोई दूसरा फर्द ना था। यार्क, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। वो जो मार्बल के फर्श पर नजरें जमाए हुए किसी गहरी सोच में गुम था, चौंक कर उनकी तरफ देखा। एक लड़की है, उसका नाम हिना है, बहुत खूबसूरत बच्ची है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा और उसका निकाह कर दिया जाए। जैदयान और नूर का निकाह उस माह के अंदर अंदर किसी तरीके में रख लेंगे। दोनों निकाह इकट्ठे ही हो जाएं। खैर से अब तुम भी सारा बिजनेस संभाल रहे हो, इस बच्ची के सारे हकूक व फ़राइज़ पूरे करने के काबिल हो। फरजाम का वलीमा भी साथ ही कर देंगे। ये तो थी मेरे दिल की बात। अब तुम बताओ। मेरे दिल की तो आपने सुनी ही नहीं। वक्त रहते अब तो दिल वीरान हो गया है। वो और वीरान दिल में कब कोई चाहत नमूदार हो पाती है। वो दिल में खुद से मुखातिब हुए बोला, अगर कोई कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एक बार देखना चाहते हो तो मुझसे कोई इतराज़ नहीं। मुझे नहीं देखना किसी को। वो अपने सूखे हुए लबों को वॉक किए बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा कर पाया। क्या हुआ जो मेरी चाहत अधूरी रह गई? आपकी चाहत अधूरी नहीं रहेगी। मेरी चाहत को पूरा करना शायद मेरे बस में ना था, मगर आपकी ख्वाहिश को पूरा करना तो मेरे बस में है। वो दिल में सोचने लगा, जब दिल नहीं तो कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे आपका फैसला मंजूर है दादा जान, जैसे आपको ठीक लगे। उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट रेंगी। दरवाजे की ओर में खड़ी हुई नूरुलैन के कदम डगमगाए, जिस्म जैसे जल्जलों की जद में था। वहाँ खड़ा होना दोभरम हो गया। आंखें चम चम बरसने लगी। धुंधलाई हुई आंखों से उस दुश्मन जान को देखा जो उसे झटकों की जद में झोंके कितनी आसानी से उसके वजूद को सरे से नजरअंदाज करता बड़ी अल्जमा हुआ। उसे लगा शायद वो इसके हक में बोले, मगर वो तो अपनी बात खत्म किए कब का वहां से जा चुका था। खाली लॉन्च उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसकी नजर ऊपर पड़ी, जहां वो शबाज तगल्लुक को बाजू से पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, ताकि इन्हें इनके कमरे में जाने के लिए मदद दे सके। फरजान सुबह का थका हारा सा कमरे में आया तो दिलबरा को देखे ठटक कर रह गया। आंखों में हैरत उतर आई थी। उसकी पसंदीदा नेवी ब्लू लिबास में शॉर्ट शर्ट और प्लाजो पहने, बालों को पुश्त पर फैलाए छोड़े, कानों में मौजूद आवेज़ें उतार कर रखते हुए अब गले में मौजूद नाजुक से नेकलेस उतारने में इतनी महव थी कि फरजाम की मौजूदगी महसूस ना कर सकी, जबकि उसका शफाफ चेहरा सुर्ख लिपस्टिक से सजा था और स्याह दिलकश आंखें काजल की धार से लबरेज थी। फरजाम तगला का दिमाग जैसे स्टिक हो गया। वो बिलाख्तियार अपने भारी कदमों से उस हसीन
حسن کی دیوی کے قریب آنے لگا۔ نورالعین اسے دادا جان کے کہنے پر اپنا نیا ڈریس اور میچنگ جویلری پہنا کر گئی تھی، کیونکہ دل کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آج صبح اس کا نکاح ہوا تھا، اسی لیے اسے نکاح کی مناسب سے تھوڑا بہت تیار کر کے گئی تھی۔ وہ اپنے دوست کو واپس ملنے پر اس کی دوبارہ ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کے ہاتھوں تیار ہو گئی تھی۔ سوچا تھا کہ فرزام کے اندر آنے سے پہلے ان خرافات سے آزاد ہو جائے گی۔ اسے فرزام کی اتنی جلدی کمرے میں آنے کی امید نہیں تھی۔ وہی سیاہ سحر انگیز آنکھیں جو گہنی خمودار پلکوں سے سجی تھیں، انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کب سے من میں تھی۔ وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حرس میں لے گیا۔ وہ فرزام تغلق کے اس عمل پر حق ادا رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپا کھو کر کوئی جسارت کرتا، دل نے ٹانگ اونچی کیے گھٹنا اس کے پیٹ میں کک کی طرح مارا۔ اے ٹھرکی پولیس والے، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو وہ کہاں اس نازک سی لڑکی سے اس حرکت کی امید رکھتا تھا۔ وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ ایسی کک سے اس دیو قامت شخص کو کہاں فرق پڑنے والا تھا؟ یہ تو معمولی کی بات تھی، مگر وہ اس کی حرکت پر اش اش کر اٹھا۔ تم طائف کے ساتھ ساتھ چورنی بھی ہو، اور وہ بھی پوری طرح ٹرینڈ۔ سچ سچ بتاؤ کس گینگ کے لیے کام کرتی ہو؟ وہ اب پولیس والوں کی طرح تشویش کرنے پر اتر آیا۔ دماغ تو تیرا بڑا کام کرتا ہے موالی کہیں کے، بکواس بند کرو۔ تھوڑا سا پروٹوکول کیا دے دیا، تم تو سر پر ہی چڑھ گئی۔ یہی تو طائفوں کی خاصیت ہے، ہم جیسے معصوم مردوں کو سن سنور کر اپنے دام میں پھنسانا۔ تم نے بھی وہی داؤ کھیلا ہے، مگر صدا افسوس میں وقت رہتے بچ گیا ہوں۔ وہ ہنکار بھر کر بولی، تم اور معصوم، تم جیسے معصوم مرد ہی ہم جیسی طوفوں کے کوٹھے پر اتنی راتیں رنگین کرنے آتے ہیں، اور انہیں ہم جیسی نشانیاں دے جاتے ہیں۔ طوفوں کیلی تو ایک طائف کو جنم نہیں دیتی، وہ تم جیسے ہی بے غیرت مرد ہوتے ہیں جو گھر میں بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی مردانہ تسکین کے لیے وہاں آتے ہیں۔ تم جیسے مردوں کی وجہ سے طائفیں جنم لیتی ہیں، اکیلی طائف کیسے جنے گی؟ طائف، بکواس بند کرو۔ وہ دھاڑا اور اس کے جبڑے کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار سے لگا گیا۔ کیوں، سچ کڑوا لگا کیا؟ چھوڑو مجھے، مجھ پر اپنی طاقت مت آزماؤ۔ وہ حلق کے بل چلائی، مجھے بھی میری برداشت سے زیادہ مت آزماؤ۔ وہ بھی اب اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے گھبرایا۔ مجھے مفت کا مال سمجھ کر چھوا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے، اور تم کیا سمجھتی کہ میں ان عام گھریلو ڈری اور سہمی عورتوں میں سے ہوں جو چپ چپ تمہاری کسی بھی زیادتی کو سہ لوں گی؟ وہ تو مسٹر پولیس والے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، بھول کر بھی ایسی بھول کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے وارننگ دینے لگی۔ چند پیسوں کے لیے بکنے والی طائف کے یہ انداز! واہ، تم جیسی ہزاروں طائفیں میرے پیروں کی دھول ہیں۔ ابھی نوٹ پھینکوں، ابھی ہزاروں گریں گی میرے آگے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر بولا، دنیا میں ہر عورت ایک بکنے والی چیز ہے، وہ چاہے گھر میں بکے چاہے بازار میں۔ کبھی پیسے کے لیے بکتی ہے تو کبھی گھر گرہستی کے لیے۔ کہیں وہ خود بکتی ہے اپنی مرضی سے، کہیں وہ بیچ ڈالی جاتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، تم جیسی گری ہوئی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جو دھڑلے سے ایک رات میرے بھائی کے کمرے میں گزار کر کتنی آسانی سے الزام مجھ پر لگا گئی۔ جانے کتنوں کے کمرے میں ایسی راتیں گزار چکی ہو۔ میں بھی کس سے بات کر رہا ہوں، یہی تو طائفوں کا کام ہے۔ خود کو آئینے میں دیکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ تم کس قدر گرے ہوئے نیچ انسان ہو۔ ارے تمہاری اصلیت دیکھے تو آئینہ بھی چٹک جائے، دلبرا نے چلاتے ہوئے کہا۔ جیسے سرفراز نے سنا، اس نے دل کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس سے بھی زیادہ گرا ہوا انسان ہوں، کیونکہ تم جیسی مکار لڑکیوں کے لیے گرنا پڑتا ہے، تاکہ تم جیسی بدچلن لڑکیوں کو اپنی اوقات پتہ چل سکے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں فرزام تغلط ہوں، میں ہر بات تمہاری بکواس سنوں، ایسی امید مت رکھنا مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وحشت چھائی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو، پہلی بار سچ بولا، باقی تم سے برا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنفر سے پھنکاری، پھر سامنے رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو پیپر نکالے، اپنے رنگے ہونٹوں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بستر کی طرف بڑھی۔ اے
किधर? वो अबरू उचकाकर दशकश लहजे में बोला, इस बिस्तर पर तुम जैसी औरत का वजूद मुझे एक पल को गवारा नहीं। ये औरत किसको बोला? वो उसके करीब आई, उसके कॉलर को दबोच कर गुस्से से बोली, क्यों तुम कोई तीसरी सिफ्त हो? वो मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला, उसे तो जैसे किसी ने जलती आग में झोंक डाल दिया हो। शट अप। वो उसका कॉलर झटक कर उसे धक्का देकर पीछे करने लगी। बड़ी जबान चलती है तुम्हारी, पछताओगी जब मैंने तुम्हें अपने अंदाज से शट अप करवाया। वो ज़ुमैनी अंदाज में बोला। इसकी बात उसे मजीद आग बगोला करने के लिए काफ़ी थी। और हाँ, नीचे बिस्तर कर लो अपना। फरजाम उसके चेहरे पर गुस्से के बाद से आने वाली सुर्खी देख तंजिया मुस्कुराहट उछाल कर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। तुम जानते नहीं अभी दिल ब्राक हो, अभी पता चलेगा दिल से पंगा लेने का अंजाम। बिस्तर पर सोना है ना तुम्हें? अभी सुलाती हूँ तुम्हें बिस्तर पर। उस साइड टेबल पर रखा गया पानी भरा जग पूरे बिस्तर पर अच्छी तरह निढाल चुकी थी कि थोड़ी सी भी जगह खुश्क ना थी। अभी वो इसका नाम से फारिग हुई थी कि वो आरामदेह सूट पहने हुए बाहर आया तो गीला बिस्तर देख उसकी तरफ बढ़ा। बड़ी बड़ी वाहियात हस्तियां होगी इस दुनिया में, मगर तुमसे बढ़कर कोई नहीं। वो खुद पर काबू पाते हुए दांत पीस कर बोला। वो सीने पर हाथ बांधे उसके तासरात का जायजा लेते हुए खासा उठा रही थी। फरजाम ने तअस्सुफ से सर हिलाया। सारे दिन की तकदो के बाद अब थकान उस पर हावी हो चुकी थी। मजीद झंग का इरादा तर्क किया। वो कबर्ड से अपना कम्फर्ट निकाल कर नीचे कालीन पर तकिए रखे लेटा और पाँव से सर तक कम्फर्ट ओढ़े सो गया। वो काफ़ी देर खड़ी रही, फिर थक कर बैठी, काफ़ी देर तक जागती रही। जूं जूं रात गुजर रही थी, माहौल में खनकी बढ़ रही थी। उसे इस बारीक शिफॉन के सूट में अब अच्छी खासी ठंड लगने लगी। क्या करूं, बिस्तर भी गीला है। उठकर कबर्ड में देखा, मगर कोई भी दूसरा कम्फर्ट नहीं मिला। अब तो ठंड से वो कांपने लगी। नीचे सोए हुए इस वजूद को देखा तो कुछ सोचते हुए दूसरा तकिया उठाकर उसके पाँव वाली साइड पर रखा और उसके गिर्द लिपटा हुआ कम्फर्ट खींचकर थोड़ा सा अपने ऊपर रख किया। गरमाइश मिलते ही जिस्म को सुकून मिला तो वो कुछ देर में ही नींद की वादियों में उतर गई। बलखसूस फजर की अजान सुनकर फरजाम की आँख खुली। उसे अपना हाथ किसी नरम गरम चीज से महसूस हुआ तो वो अंधेरे में टटोल कर देखने लगा कि ये क्या है। दिल जिसकी अभी कुछ देर पहले ही आंख लगी थी, अपने पैरों पर किसका हाथ महसूस हुआ तो अपने पाँव को जोर से झटका और उठकर बैठी। फरजाम जो भी समझने की कोशिश में ही था, सब समझ में आते ही होश में आया और उठकर बैठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो और क्या, तुम्हारे सर पर सोती? वो खुमार आज़ादा आवाज़ में बोली। नींद से अभी भी आंखें बोझल और सुर्खी माइल थी, जैसे किसी ने कच्ची नींद से जगा दिया हो। वैसे मेरी बाहों में सोने पर मुझे कोई इतराज़ नहीं। सही अंदाज़ा लगाया था मैं। तुम ठरकी पुलिस वाले किसी भी वक्त ठरकपन झाड़ने से बाज नहीं आते। रात को तो बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे कि अब एकदम से रोमांस का कीड़ा कैसे फड़कने लगा। वैसे वो क्या कहते हैं हिंदू? हाँ, सुबह सुबह उठकर अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम भी मेरे पैरों को छूकर वही ले रहे थे शायद। वो उसके किए पर तंज भरे तीर बरसाने लगी। जाओ ठरकी और घटिया पुलिस वाले, तुम्हारा आज का सारा दिन मनहूस गुजरे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। वो बिल्कुल हिंदुओं की नकल उतारते हुए बोली। सच सच बताना, कहीं तुम किसी हिंदू की औलाद तो नहीं? वो भी उसकी जबान के जौहर पर अपना बदला झट उतार गया। शट अप। वो उंगली से वार्न करते हुए बोली। उंगली नीचे। वो उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाए उसे शिद्दत से मरोड़ते हुए बोला, कितनी बार कहा है मेरे सामने जबान नहीं चलाया करो। मेरी जबान है, जितनी मर्जी चलाऊं। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। तुम्हें देख लिया, सुबह सुबह सारा दिन वाकई मनहूसियत में गुजरने वाला है। वो कम्फर्ट हटाए वॉशरूम में की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वुजू करके वापस आया तो वो खुद को कम्फर्ट में छुपाए शायद फिर से सो चुकी थी। उठकर नमाज पढ़ो, वो उसे रोब आवाज में बोला। मुझे नहीं पढ़नी, जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। वो कम्फर्ट में मुंह दिए चिल्लाई, दिमाग तो तुम मेरा खराब कर रही हो। 1 मिनट से पहले उठ जाओ, वरना क्या। वो चेहरा बाहर निकाल कर हमेशा की तरह उससे लड़ने को तैयारी पकड़े हुए बोली, वरना तुम्हें उठाकर वॉशरूम के टब में फेंक आऊंगा, जिसमें -डिग्री तक ठंडा पानी है। और जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ। मेरे आने तक तुम मुझे नमाज पढ़ती नजर आओ, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो सर पर नमाज वाली टोपी पहनकर उसे धमकाता बाहर निकल गया। उसके जाते ही वो पास पड़ा तकिया जिस पर वो सोया था उसे उठाकर गुस्से से दूर पटक चुकी थी, जिससे कि वो फजाम तगल्लस हो। नसीम, मेरा गर्म पानी जमा
जमा में पहुंचा देना, जिम में पहुंचा देना। वो स्मार्ट अंदाज में कहता हुआ जिम की तरफ बढ़ गया। हिना जी नसीम कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। जी क्या बात है? वो जो ड्रेसेस के सामने अपने बाल बना रही थी, जल्दी जल्दी इन्हें लपेटकर मैं इसी से जुड़ा बनाया। बाहर साहब जी के दादा जान आए हैं, आपको साहब जी दोनों को बुला रहे हैं। पहले तो वो हैरान हुई कि आज से पहले तो कभी उसने जैदियान के किसी रिश्तेदार को यहाँ आते नहीं देखा। ठीक है, मैं आती हूँ, आप चलें। हिना जी आप ऐसा करें, ये पानी साहब जी को दे दें, वो इस वक्त जिम में है, और साथ इन्हें इनके दादा जान के आने की इतला भी दे दीजिएगा। मैं ज़रा किचन में इनके लिए नाश्ते या चाय पानी का इंतज़ाम करूँ। वो बखला कर बोली, मगर नसीम उसे बोतल पकड़ाती हुई तेज़ी से वहाँ से निकल गई। पीछे मुड़कर देखा, हनान अभी सोया हुआ था। वो एक नज़र उस पर डालती हुई बाहर निकली और जिम की तरफ कदम बढ़ाने लगी। रिनिया की वफात के बाद गिनी चुनी 2 या 3 बार ही वजदियान को देख पाई थी, वो भी दूर से, क्योंकि इसका सारा काम नसीम के जिम्मे था। वो नाश्ते किए जूं घर से निकलता, देर रात घर लौटता, तब तक वो जदीयान को लिए कमरे में सो चुकी होती। आज पहली बार था कि वो खुद से उसके पास जा रही थी। जदीयान पिछले 1 घंटे से मुसलसल कान में हेडफोन्स लगाए रैंकिंग मशीन पर फुल स्पीड से आंखें बंद किए दौड़ रहा था। इस वक्त वो ब्लैक वेस्ट में था, जो पसीने से पूरी तरह से भीग कर उसके कसरती जिस्म पर चिपकी हुई थी। घनी मूंछों तले नाभि लब आपस में भीजे हुए थे, पसीने की बूंदें टपक कर नीचे गिर रही थी। गिलास वॉल से आती सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही थी, जिससे इसके सफ़ेद जिस्म पर पसीने की बूंदें वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। खूबसूरत कशीदा रोशन पेशानी पर भूरे बाल बिखरे पड़े थे। हिना उसे जिम की दहलीज पर खड़ी यटक देख रही थी। इस हुस्न के देवता की शख्सियत में जाने कैसा सहर था कि उसके कदम उस मनाजिर पर जम कर रह गए। उससे जैसे ही महसूस हुआ कि उसके सिवा भी कोई मौजूद है, उसने अपनी आंखें खोली। हिना उसे अपनी तरफ तकतपाकर बौखलाते हुए 2 कदम पीछे हुई। वो एक पल में इससे मशीन से उतरा, हेडफोन उतार कर एक तरफ रख कर टावल से अपने चेहरे का पसीना साफ करता उसके पास आया। एक हाथ से टावल उछाल कर स्टैंड पर फेंका। वो उसके करीब आने पर डरते दिल से नजरें झुका गई। नसीम कहाँ है? वो उसके हाथ में मौजूद बोतल पकड़े, ढक्कन खोलकर मुंह से लगाकर एक घूंट भरने के बाद बोला, वो किचन में है, आपके दादा जान आए हैं, यही बताने आई थी। कहते ही वो पलटने लगी। रुको। उसकी सर्द आवाज पर उसके कदम वहीं थमे। तुम दादा जान के पास जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। वो बस इतना ही कह पाई। जाने क्यों उसके सामने जबान कंग हो गई थी। वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। बारीक सी आवाज़ सुनकर शहबाज तगल्लुस ने, जो अखबार पढ़ रहे थे, सर उठाकर उसकी तरफ देखा। दिलकश नैन, नक्श सलीका, सफ़ेद और गुलाबी रंगत की हामिल कम उम्र लड़की सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए हुए इन्हें अदब से सलाम कर रही थी। उसके चेहरे से ही मासूमियत छलक रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वो वहीं खड़ी, उंगलियां आपस में फौंस किए नर्वस सी खड़ी थी। इधर आओ हमारे पास। वो उसे इशारा करते हुए अपने पास बैठने के लिए बोल रही थी। वो थूक निकलते हुए सहम कर उनके पास बैठी। नसीम चाय के साथ लज़्ज़ात लेकर आई और मेज़ पर चुनने लगी। कुछ ही देर में जदियान भी तैयार होकर वहां पहुंच चुका था। बेटा जी, हम जदियान के दादा जान हैं, उनके बड़े। तो क्या आप भी हमें अपना बड़ा मानती हैं? जी। वो मकसद इतना ही कह सकी। तो हमने एक फैसला किया है कि इस जुमे आपका निकाह कर दिया जाए। वो इनकी बात पर ठटक कर अपना झुका हुआ सर उठाते हुए जदियान तगल्लक को देखने लगी, वो जो शायद इसके जवाब का मुंतजिर था। उसकी भूरी आंखों में देखने की मजीद साख्त खुद में ना पाते हुए वो दोबारा नजरें झुका गई। दिल अजीब ताल पर धड़कने लगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? वो खुद से सवाल करने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रानिया आप ही क्या सोचेंगी? नहीं, मगर हनान जिसमें मेरी जान बसती, ऐसा हुआ तो मैं उसके पास ही रहूंगी हमेशा। वो सोचने लगी। तो बेटा जी, आपने बताया नहीं कि आप राजी हैं? वो बिना बोले सर साबत में हिला गई। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, तुमने तो मेरा मान रख लिया। बस अब तैयारी पकड़ो। जदियान इस जुम्मे को तुम्हारा और नूर का निकाह और हिना का यार्क के साथ। वो खुशी से दिल लबरेज लहजे में बोले। ये बात सुनती जैसे सातों आसमान उसके सर पर टूट पड़े। वो तो कुछ और सोचकर मुस्बत जवाब दे दी थी, मगर वो तो कुछ और ही समझे, या फिर मैंने ही समझने में गलती की।
हिना तो है तुम पर, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुमसे, कहाँ तुम और कहाँ वो खुद को मलामत करने लगी। एक क़यामत थी जो इस पर आकर गुजर गई। गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा, मगर वो खुद की कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कैसे वो रोक कर खुद को इनके सामने अज़हा कर सकती थी। हनान उठ गया होगा, मैं उसे देखती हूँ। वो बहाना बनाए उठकर वहां से जाने लगी। मुझे भी मिलवाओ मेरे शेर से। शबाब तगल्लुक की आवाज़ सुनकर वो मुड़ी, जी अभी लाती हूँ। अभी इतना ही कहा था कि नसीम हनान को गोद में उठाए कर ले ला रही थी। वो कमरे में हिना को ना पाकर जो रोने लगा कि चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। नसीम इसीलिए उसे बाहर ले आई। ममा, वो हिना को सामने देख जोर से बोला। हिना ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया। वो उसके साथ चिपका हुआ था। वो उसे लिए वापस सोफे पर बैठी। हनी, इनसे मिलो, ये आपके दादा जान है। वो हनी को शबाब तगल्लुक का तारुफ करवाने लगी। भाई दादा नहीं, परदादा, वो मुस्कुरा कर बोला। इधर आओ मेरे पास। वो दोनों हाथ फैलाए उसे अपने पास बुलाने लगे, मगर हन्नान नफ़ी में सर हिलाने लगा और ख़ुद को अपनी मामा के दुपट्टे में छुपाने लगा। ज़दियान, ये तो बहुत अटैच हो गया है बच्ची से। ज़दियान ने हिना की तरफ देखा और उसने ज़दियान की तरफ। पल भर को आंखें मिली, फिर ज़दियान ने आंखों का जाविया फेर लिया। वो दिल मसोड़ कर रह गई। आंखों में अटके हुए आंसुओं को पीछे धकेलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा उसे इस वक्त। ज़दियान, मैं अब तुम सबको फिर से एक साथ देखना चाहता हूँ। शादी के बाद तुम वापस तगल्लुक वाला में शिफ्ट हो जाओगे। इस तरह हनान भी इसी बच्ची के साथ रहेगा। हिना हिना आहिस्ता आहिस्ता नूर को इसकी पसंद नापसंद समझा देगी, और हनान का जहन भी डिस्टर्ब नहीं होगा एकदम उसके दूर जाने से। वो ये दोनों मिलकर इसका ख्याल रख लेंगी। जी ठीक है। वो इनकी बात पर मुत्तफिक हुआ। नूर, ये बार बार इस यार का नाम मेरे सामने लेना छोड़ दो। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारा निकाह मैं कभी भी यार से नहीं होने दूंगी। उसको मैंने खुद इस लड़की के साथ तन्हा कमरे में रंगे हाथों पकड़ा है। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। तुम खुद तो हो पागल और मुझे भी यार यार करके पागल बना दोगी। एक झटके से इसके पैरों तले जमीन निकल गई जब निगत बेगम ने उसे झंझोड़ कर एक ही सांस में बोलते हुए हकीकत से, आका, क्या ये आप क्या कह रही हैं? आप यार कैसा नहीं हो सकता? मैं यार के अलावा किसी और से निकाह कैसे कर सकती हूँ? अम्मी, आप जानती हैं, आप मेरे दिल से, मेरे जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ है। इस दिल में बचपन से यार के सिवा कोई और नहीं है। अम्मी, खुदा के वास्ते मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। अम्मी, खुदा के वास्ते मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दे, मुझे बचा लें। आप दादा जान से कहें ना, मुझे यार से दूर करके जुदाई की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। अम्मी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। वो रींदे लहजे में चीख चीख कर बोल रही थी। इसकी ये हालत निगत बेगम से देखी ना जा रही थी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और समझाने की कोशिश कर रही थी। नूरुल्लाह की आवाज़ हिचकियों में बदल गई। वो हिचकियों से रोने लगी। कुछ नहीं रखा उस यार के पास। अपने बाप दादा का बना बनाया बिजनेस संभाल रहा है, खुद कुछ करने के काबिल नहीं। अरे करेगा तो तब ना, जब इश्क मशूक़ी से फुर्सत मिलेगी। ज़दियान को देखो, खुद के बलबूते पर उसने चंद सालों में अपना नाम इस तरह बनाया है कि आज उसे वो सारा मुल्क जानता है। क्या नहीं है उसके पास, तुम ऐश करोगी उसके साथ। मुझे तो शुरू से ही ज़दियान पसंद था तुम्हारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मम्मा, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं सिवाय यार के। प्लीज़ मम्मा, मेरे दिली जज्बात को समझे। नूर, बंद करो ये यार्क नामा। अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ ना सुनूं इस बारे में। कुछ ही दिनों में तुम्हारा निकाह है ज़दियान के साथ। ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस बनवाए हैं। वो उसको एक रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी दिखाते हुए बोली। मुझे साड़ी नहीं पसंद और ना ही मैं ये पहनूंगी। अगर ये सब यार के नाम पर होता तो वो खुशी से ये सब ले लेती। क्या हुआ, पकड़ो उसे। ऐसे खड़ी हो, क्यों देख रही हो? मुझे पहन कर दिखाओ, फिटिंग ठीक है कि नहीं। इसको ऐसे ही खामोश खड़ा देखकर वो उससे फिर से मुखातिब हुई थी। मम्मा, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। इनकी सर्द आवाज़ पर नूर मुश्किल बोल पाई थी। क्यों क्यों नहीं पहन सकती तुम? ये सब क्या कमी है इसमें? निगत बेगम का लहजा एकदम से सख्त हुआ था। मम्मा, आप जानती हैं कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। वो आहिस्ता आवाज़ में इनको इस ड्रेस की खामी बता रही थी, जबकि निकत की नज़र में ये कोई कमी नहीं थी, बल्कि इस ड्रेस की खूबसूरती थी। मैं सब जानती हूँ, मगर तुम भूल रही हो कि तुम अब ज़दियान की बीवी बनने वाली हो। खुद को उसकी पसंद में ढालो। निगत उसको निगत उसको जताने वाले अंदाज में समझा रही थी, जिस पर नूर बस खामोशी से इनकी खाली आंखों में देखने लगी।